So yeah, let's begin. Are you able to see my screen? हेलो, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, yes. ओके। सो मैं पहले आप ये बताओ कि आप लोगों में से स्टैंड अलोन कितने लोग कर रहे हैं? ओके, some guys raised in Rudra and Aryan only. एंड किनका मतलब 12th में मैथ्स नहीं था? Guys who don't have maths in 12th. Okay, nice. All of you are PCM student. It means it's quite easy for you to deal with the mathematics part of this degree. Okay. Okay, let me introduce myself. I am Ashish and I am currently in the diploma, the third term of diploma. So I joined 2 year ago this degree. So I will be teaching maths 1 for you guys. Okay. सो बेसिकली मैथ्स वन में क्या है ना कि वो अवनीश भैया वो मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स एंड एक्टिविटीज क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। सो मैं थोड़ा नया ट्राई करने को ऐसे मैंने बताया था ओरिएंटेशन में भी लाइक डैट कि मैं एक वीडियो में आपको समराइज कर दूंगा लेक्चर्स को, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू द PYQs ऑफ द पर्टिकुलर वीक। समझ रहे हो मतलब क्या कि वीक वन मैंने पढ़ाया, ठीक है? आपके 12 वीक होंगे कोर्स में, ठीक है? मैंने वीक वन का कंटेंट पढ़ाया, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीक वन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, मतलब सॉल्व विथ अस लाइक दैट। So we will solve together the and we'll see the approach how to deal with that such kind of questions. Okay. So इससे आपको ये होगा कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस होते चलेगी एग्जाम की, ठीक है? So I also did in the many course like this approach. Okay, so it helps me a lot. So any question before we are starting? Guys, keep your mic on if your surrounding is quiet. Be interactive in the session. Yes, yes, we can continue. Okay, so in the maths one, week one, so we have to deal with our little things. Okay, so let me start with the color of pen. Okay, yeah, lecture one. Is my screen visible now, guys? Hello, hello. Are you able to see what I was writing? Okay, I think the screen is lagging. Let me join. ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ. Yeah, is my screen visible? Yes, yes, it is visible. Okay, okay. Yeah. So initially in the lectures we have to deal with some basics. I am covering it in a short, okay. So initially natural numbers in our case in this course natural numbers start with zero, okay. मतलब अपने केस में नेचुरल नंबर हमेशा वन से काउंट होता है, होल नंबर जीरो से काउंट होता है, बट इन आवर केसेस नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ जीरो वन टू, ओके, देन वी विल प्रोसीड लेटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेटर वीक्स में आप पढ़ोगे पाइथन, ठीक है, जावा, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ जो इंडेक्सिंग होती है ना वो जीरो से होती है, ठीक है? हमेशा पाइथन में भी होगी, सीटी में भी आप पढ़ोगे ऐसा, ठीक है? आई थिंक तो वहाँ भी आपको इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। सो आई थिंक फॉर मेकिंग यू हैबिचुअल दे हैव marked as natural number starts from zero, okay. So and some notations are there, natural numbers start from zero, integers
integers are from minus infinity to infinity, all the counting numbers, not to the fractions, ठीक है, minus 5 to 3 like that, okay. And for the prime numbers, so numbers having only two factor, and those factor are the number itself and 1, okay. So don't worry for the notes, I will give you the proper notes, okay, after the lecture. So the composite number is just opposite of the prime number, okay, and the rationals are in the form of p by q, okay, and p and q should not equal to 0, and p and q should integers, okay. This means belongs to, okay. सो होल नंबर रियल नंबर्स, ओके, मैं आपको एक छोटा सा एक वेन डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी लाइक दैट. सो नेचुरल नंबर इज दिस वन, ओके. सो नेचुरल नंबर इज a subset of this integer, and the whole integer is a subset of q rationals, and this whole is a subset of, we have to study set and subset also in this lecture, I will tell you later. This is the real number, okay. Is my screen lagging? Are you guys can confirm? Let me check myself. Guys, are you able to see anything? Hello? Hello? Yes, yes, screen is visible. Okay. So the things I was writing on the screen, are you able to see that? Yes, Okay. Yes, Sankik, still. Sankika. Okay, Sanika, sorry. Hello. Yes, Sanika, tell. Hello. So I think they have raised a hand just for formality. Okay, let's proceed. Okay. So these are the quite basic things that we have already studied. Okay. So rationals, irrationals, whole numbers, real numbers, take imaginary numbers. Imaginary numbers, we can see that minus root 2. That means the numbers which have iota in it that are called imaginary numbers. Okay. Complex complex numbers all apart from the real numbers, those are called complex numbers like that 3 plus 7 times of iota like this or anything. And the conjugate numbers always exist in pair, and pair means 3 plus 7i. If 3 plus 7i is there, then 3 minus 7i should also be there, okay. मैं आपको कुछ नोटेशंस बता देता हूँ जो कि आपको एग्जाम्स में और फिर असाइनमेंट्स में काफ़ी हेल्प करेंगे लाइक दैट. एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, ओके. डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, एंड इसमें आर पॉजिटिव अगर लिखा है इट मीन्स रियल विथ द पॉजिटिव सेंस, ओके. पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव मीन्स नेगेटिव रियल नंबर. And then after I or z, it belongs to integers, and cube belongs to rational number, okay. You guys know GCD? Guys, keep your mic on, so I'll be asking question in between. So GCD बोले तो instead it means greatest common divisor, like that HCF we studied in our earlier classes, sorry, in school. GCD, I think yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. my pen is lagging. Okay, wait. Yeah.
ओह, ये इश्यू क्यों आ रहा है? ये मेरे पेन क्यों लैग कर रहा है टैब का? GCD, greatest common divisor. Let's suppose we have two numbers like 18 and 12. So we will Sir, I write think the. there's a network issue. Okay, you guys are able to hear me? So recently I have written 18 and 12. Are you able to see that? Hello? Hello? Let me Hello. change the Let me change my Wi-Fi. So wait, let me join the meet with another ID and see what's going on there. Wait, yeah. Okay, let's begin with. Yeah, it's fine now. GCD means क्या होता है? Greatest common divisor of any two numbers. Okay, the factors of 18 is 1, 2, 3, and then 6 and 9. Okay, and that for 12 is 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Okay, so the greatest common. Lost your Hello, voice. hello, hello. Hello. Huh, is there any issue? No, no, it's fine. Okay, okay. So the greatest number which are common in between both of these is 6. So the GCD of this number 18 and 12 will be 6. Okay. So now let's move to the set part. Okay. This one is the important one. So set is a collection of Sir, screen items. is not Huh? visible. Okay. What happened? Is my screen not visual? Hello. It is visible, sir. Okay, okay. देख सकते Sir, please check. Screen is not visible. So I have checked with the another ID. It's visual there. Maybe there may be the network issue from your side. Let me check once again. Yeah, it's fine. I am writing it. Yeah, it's visual there. So now let's begin with the set part. Okay. So the elements set is a collection of elements and set can be infinite. Okay. जैसे अपन जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, और नंबर में कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5। ओके, सो इसके बहुत सारे मैं सबसेट बना सकता हूँ, लाइक दैट वी कैन क्रिएट वन सबसेट विथ एलिमेंट 1 2 and 3 4 इंक्लूडिंग 4। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। सर प्लीज चेक. इज माई कुछ स्क्रीन भी नॉट नहीं दिख विजिबल? रहा है सर. इज द सेम फॉर द अनदर गाय ऑल्सो? ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। हैं. No, sir. माई स्क्रीन इज विजिबल, आई एम राइटिंग You हेयर। can rejoin the meeting. You can leave and rejoin. Maybe it might work. ओके, लेट मी जॉइन अगेन। क्या इशू है यार? Rejoin करके देख लो ना.
Yeah, it's visible now. I am writing Ashish. No, no, it is not visible now. Nothing is visible. Okay, Your okay. I think screen is where. like this. Yeah, yeah. I have to present my screen. Okay, wait 1 second. Yeah. Now check. Is it Now we visible? can see it. Yes, yes. Okay, okay. Now, is it fine for the Sanika? Okay, let's. The flow टूट जाता है. Okay. So where we were, we have to deal with the set and subset part. Okay. So there are some notations like x is a subset of y. It means x जो है, लेट सपोज यहाँ पे ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, ये हमारा हो सकता है y. दिस इज कॉल्ड y एंड दीज सर बोथ. हाँ. हेलो. कुछ भी विजिबल नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इज द सेम फॉर द अनदर गाय ऑल्सो. नो सर, हेलो. इधर लिव करके रिजॉइन कर लो ना। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, यस सर, बाकी दिख लोगों रही है। को? वही तो. आई थिंक एक बार आप नो रिज्वाइन प्रॉब्लम। करो जिन्होंने कहा था. ओके. सो जैसे हमारा ये सेट है, ठीक है, ये बड़ा सा सेट है, ठीक है, इसके मैंने एक छोटे छोटे सबसेट बनाए, ठीक है. तो इसको अगर अपन नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है ना, सो दीज आर कॉल्ड, आई विल, मैं इसे एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है. एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई. इट मीन्स एक्स जो है ना, वो वाई के इक्वल हो सकता है. दिस नोटेशन मीन्स वाई, एक्स शुड इक्वल टू वाई, या फिर एक्स जो है वाई से हमेशा छोटा होगा, ठीक है. तो दीज आर द नोटेशंस. इट इसका मतलब ये होता है कि x is subset of y. ओके. सो अब सेट सबसेट मतलब कोई भी एक नंबर है, लेट सपोज हमारे पास एक सेट है, ठीक है. सेट कंटेंट्स थ्री एलिमेंट 1 2 3, ठीक है. इसके अब कितने सबसेट हो सकते हैं? हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए गिवन सेट? ओके. सो देयर इज अ फॉर्मूला. ओके. टू की पावर n. इफ एक सेट में अगर जितने एलिमेंट होते हैं ना, दैट मीन्स दैट डिनोट्स द n, ठीक है. इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो थ्री एलिमेंट्स, and the total 2 की power n set can be formed from this subset can be formed from this set. Okay. So we will see that. I am come to your doubt. Okay. There is an empty set. एक empty set होगा और एक set होगा जिसमें केवल 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा, एंड एक सेट ऐसा होगा जिसमें 1 2 होगा, फिर 2 3 एंड 3 1. ओके. एंड वन सेट ऐसा होगा जिसमें 1 2 एंड 3 ऑल होगा, ठीक है. So someone raised a hand, I think, or someone commented up. Try it on desktop or another device. Bro, I am using desktop already. मैं उसको बता रहा हूँ सर, आपको Okay, नहीं। okay, okay, okay. Thank you. So now let's go for the some important part, that is union, intersection, set difference and complement. Okay. So मैं कुछ notations just like union बता रहा हूँ. Union. यूनियन को डिनोट करना मीन्स ए और बी, जस्ट लाइक एक्स और वाई. ओके. सो दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई. ओके. सो बोथ और सॉरी सॉरी या सो द होल पार्ट इज, जो पूरा पार्ट है ना, जो येलो पार्ट है, ये पूरा अपना यूनियन में आएगा, है ना. ओके. एंड सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन अपन देखें, इंटरसेक्शन को अपन डिनोट करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई. एंड देन सेट डिफरेंस, ठीक है. सो मैं अगर इसका ग्राफ, यदि मैं वेन डायग्राम बताऊं इसका. ओके. सो द ओनली पार्ट that collides in between both of them, this is the intersection of both x and y. And the set difference means कि
सेट डिफरेंस को अगर अपन नोटेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, x माइनस वाई, दिस मीन्स x माइनस वाई। ओके, सो अगर अगर अपन इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में देखें तो हमारा ये पार्ट होगा, ओनली दिस पार्ट। ओके, ये हमारा होगा x, ये हमारा y। ठीक है, मतलब बेसिकली इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि x में से y सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारा x यहाँ तक जा रहा था, उसमें से y सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट मीन्स जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो भी इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ तो बेसिकली मैं सेट का थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, अब मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, लाइक ए यूनियन बी मीन्स, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ओके, अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मीन्स पूरा ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, वो निकालना है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ए वाला पार्ट है वो पहले मैं लिखता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ वो कंसिडर करता हूँ पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए यूनियन बी मीन्स ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है मैं ये बताता हूँ। ठीक है? तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने ए कंसिडर किया। ओके, जिस जिस सर्कल को मैं कंसिडर करते जा रहा हूँ वहाँ पे मैं एक पॉजिटिव साइन डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ए होल पार्ट है तो मैंने इसको कंसिडर किया। एंड बी, तो बी में ये जो पहले जो इस पार्ट इधर वाला पार्ट है मैंने इसको कंसिडर किया, और बी में तो ये इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट आता है तो ये मैंने कंसिडर किया। ठीक है, तो मुझे बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स होल पार्ट। ओके, सो इन दोनों में अब देखो यहाँ पे ये जो ये जो डायग्राम बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने एक बार कंसिडर किया है, इट्स फाइन। सिमिलरली इस पार्ट को भी मैंने एक बार कंसिडर किया है, इट्स फाइन। बट ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, सो बेसिकली हमें एक बार रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस ए एंड बी। ठीक है, तो इनमें से एक बार मैं माइनस कर दूंगा ये पार्ट, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और बेसिकली ये पार्ट बचेगा। आई थिंक इसका कुछ फॉर्मूला अलग होगा ना। हैव यू गाइस स्टडीड? हेलो, सर सही है आएगा, क्या? शायद यही फार्मूला है। हाँ, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। सही है, सही है। ओके ओके, या क्योंकि मैंने यही इसी नोटेशन से मैंने याद रखा था लाइक दैट जब मैं था 11th में, तो कि आपको पहले जिस जिस बॉक्स को आप कवर करते जा रहे हो उस बॉक्स को आप पॉजिटिव साइन देते चलो, और जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको एक बार माइनस करके उसको ऐसा कर दो। ये आपको कब काम आएगा पता है? जब आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जब आपके पास 3 सेट होंगे ना, तब आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आप सिंपल ए प्लस बी प्लस सी लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो गए क्या? अब देखो यहाँ पे देखो, विजुअलाइज मैं करवाता हूँ कि लाइक दैट आई थिंक समथिंग इज लैकिंग इन माय डेको मिनी 7। ओके, या दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहले मैंने ए बी और सी, सॉरी यहाँ पे सी है। ठीक है, सी मैंने लिया, तो ये वाला बॉक्स, दिस वन बॉक्स। ओके, दिस वन ये 2 बार आ चुका है, एंड दिस वन 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, तो एक काम करेंगे कि एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए एंड बी। ए यूनियन बी में जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है, एक बार मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये ए बी सी है तो। ठीक है, एंड एक बार मैंने एक और सब्ट्रैक्शन कर दिया बी एंड सी। बी एंड सी में जो कॉमन है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि 2-2 बार ये दोनों चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो एक-एक बार सारा चीज़ सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। वे जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए, अगर आपके पास आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन मैं विजुअलाइजेशन के उस पर ही बता रहा हूँ। ठीक है, एंड सी एंड ए में जो कॉमन है वो इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद ये होगा कि ये तीनों चीज़ कट जाएंगे, और जो जो ए एंड बी एंड सी का जो मेन इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये पार्ट ये खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करना है, सो वी विल ऐड दिस वन, ए एंड बी एंड सी। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, और ये आपका फार्मूला ओके, या ये एक फार्मूला आपका बन जाएगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि ये जो क्वालिफाइड एग्जाम होता है ना,
इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इनको जो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप पेन पेपर उठाना और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई योरसेल्फ, 1 सेकंड, ओके। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, सो 35 टू फिजिक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 35 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया, 30 स्टूडेंट ने लिया बायो, एंड 10 स्टूडेंट नन। नन मीन्स कोई भी सब्जेक्ट उसने चूज नहीं किया, लाइक दैट, ठीक है। सो अब मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक बोथ सब्जेक्ट, सर, या टोटल स्टूडेंट 60 हैं आपने, तो अगर हम काउंट करेंगे तो 75 आएगा। तो कॉमन भी तो है। ओके, यही आपको फाइंड करना है ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट टुक द बोथ सब्जेक्ट। ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने बताया ना यहाँ पे, ये देखो एस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, आई थिंक 2 ही सब्जेक्ट है, तो ये जो इस टाइप का डायग्राम बन रहा है ना, ऐसा ओहो, डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसमें दोनों कॉमन हो, जैसे हो तो जैसे मान लो कि ऐसा है ना, तुमने फिजिक्स भी लिया पढ़ने के लिए और केमिस्ट्री भी ले लिया, तो उसमें अब तुम इंटरसेक्शन वाले में काउंट हो जाओगे ना, तो लाइक दैट ऐसे वर्क करेगा। सो आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ मिनट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स एंड बायो। सो काफ़ी सिंपल है, लेट्स ट्राई एंड टेल मी द आंसर। हाँ, सर 5 हेलो, है क्या? क्या? अगेन प्लीज से अगेन। हेलो, हेलो। सर 5 है, 5 है क्या? हाँ, लेट्स सी व्हाट्स आंसर। अब देखिए 60 स्टूडेंट सर है एक आंसर क्लास। 5 है क्या? नो, answer is not हेलो, 5, okay. Answer is not 5. Are you एम आई guys able to ऑडिबल? hear? Yeah, हेलो you are audible. So answer 5 नहीं है, okay. Hello. So answer is not 5, okay. So let's see. Any other guy? Have you tried this one? Hello. Rudra and many more guys. so 13, No, not 13. what is the exact answer? Okay. So let's see. सो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, अब हमारे पास टोटल क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है, 60 स्टूडेंट है। अब इनमें से 10 स्टूडेंट जो है ना, 15। 10 10 ने तो कुछ 10 ने तो कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बचे केवल 50 स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि 50. 10 ने कुछ लिया नहीं, ठीक है। 15। या 15 इज अ करेक्ट वन, ओके। लेट्स सी हाउ द 15 come. सो लेट्स दिस इज माय क्लासरूम, ओके। अब देखो, इसमें से कुछ स्टूडेंट ये फिजिक्स लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट इन्होंने बायो लिया होगा, ठीक है। पी मीन्स फिजिक्स एंड बी बोले तो बायो, ओके। और बाकी के जो 15 स्टूडेंट है ना, सॉरी आई थिंक 10 स्टूडेंट, बाकी के जो ये 10 स्टूडेंट हैं, ये 10 इन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। तो ये जो सर्किल के बाहर जो होंगे ना, ये एरिया रिप्रेजेंट करेंगे वो 10 स्टूडेंट। Sir, your screen is not visible.
Is the same for another guy also? My screen is visible or not? Hello. या स्क्रीन विजुअल है, मैं जो नोट्स लिख रहा हूँ वो दिख रहा है क्या ओपन नोट्स में? प्लीज ओपन योर माइक एंड सी। हाँ सर, बिकॉज विजिबल है। वही तो, क्योंकि मेरे इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आई थिंक, ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। तो ये जो 10 स्टूडेंट है ना, ये 10 स्टूडेंट हमारे बाहर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 स्टूडेंट उन्होंने फिजिक्स लिया है, ठीक है, तो 35 स्टूडेंट फिजिक्स में आ जाएंगे एंड 30 स्टूडेंट ने बायो लिया है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया फिजिक्स यूनियन बायो हमारा 50 होना चाहिए, ठीक है। 15। ओके ओके ओके, या 15 इज करेक्ट वन। ओके सो पी एंड पी यूनियन बी का मैंने फॉर्मूला पर क्या बताया था, पी प्लस बी माइनस पी एंड बी, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, पी एंड बी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक द बोथ सब्जेक्ट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ओके। सो दिस ब्लैक एरिया वी हैव टू फाइंड. So P union B, I have calculated here 50. So 50 will be here where I am writing. My cursor is lagging. I think I am using the Chrome extension. That's why. Wait. Yeah. सॉरी या 50 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे पी यूनियन बी में। एंड फिजिक्स में टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 35। 35 प्लस बायो में कितने थे, 30 माइनस पी एंड बी, ये हमें एक्चुअली निकालना है, ठीक है। सो 30 प्लस 30 65 एंड 65 इधर जाएगा तो माइनस में 15 आएगा, ठीक है। पी एंड बी, दिस इज माई आंसर, ओके। सो आपको क्या है ना कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना नेक्स्ट वीक में, तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। और उसमें मैंने 3 चीज़ लिया है लाइक दैट, यहाँ फिजिक्स एंड बायो ही था ना, मैंने वहाँ पे 3 सब्जेक्ट करके लिया है, फिजिक्स बायो एंड सम अदर थिंग लाइक दैट। सो मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखाना चाहता था, ठीक है, तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा या फिर मैं अपना नोट शेयर कर दूंगा, उसमें होगा। सो मैं सबसे पहले आप चलता हूँ आपको एक कुछ ये रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रो देकर उसके बाद फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। सो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा ये बता देता हूँ कि रिलेशन। ओ सॉरी, हाँ या रिलेशन, इट वाज रिलेशन। सो आई सो टोल्ड द फंक्शंस वर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि ए रिलेशन ऑन अ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर is reflexive if every elements is related to itself. Reflect means it will reflect the same thing, ठीक है। So a relation is reflexive if it reflect the same thing. मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सेम थिंग, ओके। एक रिलेशन है, लेट सपोज हमारा है एक रिलेशन है ए कॉमा बी, ठीक है। तो इस रिलेशन में हमें अगर इसका रिफ्लेक्टिव निकालना है ना, तो ए इफ अ रिलेशन ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये रिलेशन जो है ए बिलोंग कर रहा है ए से, देन हमारे पास ए एंड ए शुड ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आप इसका एक एग्जांपल जैसे देखोगे, बहुत सारा एक सेट होगा 1, 2, 2, 3, कुछ इस टाइप का सेट होगा, ठीक है, एंड 1, 1, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आपको ये देखना इफ वन एग्जिस्ट
if 1 belongs to A, then 1 comma 1 should also present in this set. Yes, it is present. Then I will see 2. If 2 is present in the set of A, then 2 comma 2 should also be present. तो 2 comma 2 इसमें present नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक मीन्स इफ अ रिलेशन A comma B, इफ दिस इज प्रेजेंट इन माई रिलेशन, ठीक है, अगर ये हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। ओके, जस्ट लाइक कि अगर हमारा जो सेट है उसमें 1 कॉमा 2 प्रेजेंट है, तो इस सेट को अगर सिमेट्रिक होना है तो 2 कॉमा 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक दिस। एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि if A and B belongs to R is present in my relation and B and C also is present belongs to R is present in my relation, if A be present and B C present, then A and C should also present in my relation, like that। मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो अगर 1 कॉमा 2 प्रेजेंट है, 2 कॉमा 3 प्रेजेंट है, ठीक है, ए बी एंड बी सी, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए 1 कॉमा 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए इस रिलेशन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ द दिस वीक इज फंक्शन। ओके, फंक्शन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। हेलो, any of you guys have any doubt? Other I will proceed. नहीं सर। Okay, sure. ओके, अब हमारे पास आता है फंक्शन। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो ये बता देता हूँ कि फंक्शन आपका पीछा इस कोर्स में कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट आपको मैथ्स 2 जब आप लोगे तो वहाँ भी आपको फंक्शन का पूरा यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं ये सब नॉर्मल बातें लेक्चर के बाद मैं करता हूँ, ठीक है, मीट में। ओके, सो आर्यन, व्हाई आर यू सेइंग दिस एक्सटेंशन मेनी टाइम्स? ओके, सो मैं फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, ठीक है, दिस इज वन साइड एंड एक्स वाई जेड, दिस इज द अनदर साइड, ठीक है। सो ऐसा मान लो कि जैसे होता है ना कि ग्राफ, जैसे आप ग्राफ पर हो कि एक्स 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन इस इतना है, मतलब 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है, लाइक दैट। तो ये मान लो कि ये कोई मशीन है, ठीक है। उस मशीन में अगर मैं 1 पुट करता हूँ ना, तो उसका आउटपुट आता है एक्स, ठीक है। उस मशीन में कोई एक फंक्शन है, फंक्शन इज अ मशीन, ओके। उस कोई एक मशीन है जिसमें मैं 2 अगर पुट करता हूँ उसका आउटपुट आता है 3, सॉरी वाई। अगर 3 पुट करता हूँ तो उसका आउटपुट आता है जेड, ठीक। तो ये आपको बताऊं कि कोई सा भी एक मशीन है, उसको एक वैलिड फंक्शन होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। सो पहली क्राइटेरिया ये है कि जितने भी इसका डोमेन है, ठीक है, जो भी इसमें नंबर्स हैं, इससे एक ना एक एरो निकलना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, और इधर है एक्स वाई जेड, ठीक है। आप ये बताओ, ये ये पहला डायग्राम है एंड ये दूसरा डायग्राम है एक्स वाई जेड, ओके। ये इन दोनों में फंक्शन कौन सा है? फंक्शन का रूल ये है कि जो जितने भी ये फंक्शन के साइड, ये लेफ्ट मोस्ट साइड में होते हैं ना, उनसे एरो निकलना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी इनपुट्स मैं दूं उस पे कोई ना कोई आउटपुट, वैलिड आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा कोई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लाइक दिस। तो इसमें मैं 1 डालूँ तो कोई वैलिड आउटपुट आए, 2 डालूँ तो कोई वैलिड आउटपुट आए, 3 डालूँ तो कोई वैलिड आउटपुट आए, ठीक है। जस्ट लाइक कि मान लो कि हमारा है कोई फंक्शन एक्स, ठीक है, रूट ऑफ एक्स। अगर मैं इसमें एक्स के जगह -1 डालूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे रूट के अंदर वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो इस पे हमारा फंक्शन कोई भी आउटपुट नहीं देगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारा बन रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो ए से हमारा एक एरो निकल रहा है जो कि एक्स तक जा रहा है,
ठीक है। सिमिलरली बी से भी एरो निकला बट सी से कोई भी एक एरो नहीं निकल रहा है, इट मीन्स ये हमारा वैलिड फंक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ आप देखो ए से भी एरो निकल रहा है, बी से भी निकल रहा है, सी से, दिस इज अ वैलिड फंक्शन, ठीक है। सो और भी वैलिड और अनवैलिड होने के कुछ तरीके हैं, लाइक दैट मैं बताऊं कि ए बी सी, ठीक है। मेन पार्ट यही है कि जो लेफ्ट मोस्ट साइड है इससे हर एक जितने भी एलिमेंट है उतने एरोज निकलने चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड फंक्शन। हमें बस ये चेक करना है कि लेफ्ट साइड से हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, इट मीन्स कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसका एक ग्राफिकल अप्रोच में बताऊं तो ग्राफिकल अप्रोच में कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि अगर कोई मान लो एक फंक्शन हमें गिवन है, दिस इज अ फंक्शन। अगर आप ट्वेल्थ में पैराबोला पढ़े होंगे तो दिस इज द सिंपल एक्स स्क्वायर ग्राफ, ओके। तो ये एक वैलिड फंक्शन है कि नहीं, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो इसका एक मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, VERTICLE, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, ठीक है। कि इस ग्राफ में आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन डालो, ठीक है। वो जो एक्स स्क्वायर का ये जो मैंने ग्राफ हमको क्वेश्चन में दे रखा है इसको बस एक बार ही कट करना चाहिए। ये मैंने कहीं भी, आप रैंडमली कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, उस ग्राफ को केवल और केवल एक बार कट कर रहा है, इट मीन्स वो फंक्शन वैलिड है, ठीक है। इसका मैं काउंटर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा हो, दिस इज द पैराबोला, ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो अगर आप गेस कर लिए होंगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, बिकॉज अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इस ग्राफ को कट कर रहा है, ठीक है। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पे अगर कट कर रहा है इट मीन्स इट नॉट्स अ वैलिड फंक्शन, ठीक है। तो जस्ट लेट सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये हमारा वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आप देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, 1 पे वैल्यू एक यहाँ भी होगा पॉजिटिव में और एक 1 पे वैल्यू यहाँ भी होगा जो कि एक नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड करोगे कि ये लैग कर गया फिर से, वेट, या ए बी सी, इस ग्राफ का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड, इस ग्राफ का मतलब ये है कि केवल और केवल लेफ्ट साइड से केवल और केवल एक लाइन ही निकलना चाहिए, मीन्स वन ही एरो निकलना चाहिए ऐसे। दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन बिकॉज एक एक्स पे लाइक दैट दिस ए पे दो दो वैल्यू आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी फंक्शन हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है। सो आर यू गाइज इन द मिड? Please give the raise thumbnails. Okay, if you are able to see everything. हेलो, क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो ये था हमारा फंक्शन का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन मतलब फंक्शन में यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि फंक्शन में भी कुछ चीज़ें हैं लाइक वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। तो मैं वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। और मैं एक बात बताऊंगा कि ये जो फंक्शन चैप्टर है ना, अगला चैप्टर हमारा शायद क्वाड्रेटिक का होगा, फिर पॉलिनोमियल का होगा, और फिर आगे भी आपको ग्राफिकल अप्रोच अगर आप हमेशा यूज करोगे ना तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। सो लेट मी सी वेयर आई हैव रिटन दोस थिंग्स बिकॉज मुझे पुराने नोट्स वापस खोलने होंगे, या अब आपको ये देखो मैंने इसमें बहुत सारे वैरायटी बताए कि अगर एक एरो जा सकता है, दिस इज ऑल्सो ए वैलिड फंक्शन, ठीक है। और ये भी वैलिड फंक्शन है, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड, तो इन सब के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, वन वन फंक्शन होते हैं, मैनी वन होते हैं, ऑन टू होते हैं, इन टू होते हैं। मैं इन सबको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इफ दिस वन टू थ्री
and here is ABC. Okay, so यहाँ से तो एक बात है कि 1 2 3 सबसे एक एक एरो निकलना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। ओके, सो 1 का एरो ए पे गया, 2 का एरो सी पे गया, इसका एरो ए पे गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि जो हमारा ये इनपुट था, हर एक इनपुट पे आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट का जो रेंज था एबीसी, और सब आउटपुट का यूज हो रहा है, क्योंकि 1 पे ए का यूज हो गया, 2 पे सी का, एंड 3 पे बी का। तो दिस मीन्स वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू का मतलब ये है कि ये जो कोडोमेन है, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कोडोमेन का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। सो अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 सेम एग्जांपल, बट मैं एरो चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो, 1 ए के पास गया, ओके, 2 भी ए के पास गया, या इट इज़ पॉसिबल कि 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम आई फंक्शन का। 3 जो है वो सी के पास गया। तो यहाँ आप ये नोटिस करो कि ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये अनयूटिलाइज्ड रह गया है ना, ये अनयूटिलाइज्ड रह गया, सर। लेकिन हाँ, हाँ, या टेल। तो ऑन हेलो, टू कैसे हो गया? हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ ना ये ऑन टू कैसे होगा। कि यहाँ पे हाँ, देखो ये, कैन यू अगेन एक्सप्लेन हेलो, ऑन टू? ओके ओके, आई एम टेलिंग यू। सो ये यहाँ पे देखो कि 1 जो है ए के पास चला गया, 2 ए के पास चला गया, 3 डालने पे वैल्यू ऑफ फंक्शन सी आ रहा है, ओके। लेकिन ये जो बी है ये अनयूटिलाइज्ड रह गया, मतलब कि ये जो हमारा कोडोमेन है ना, कोडोमेन जितना हमें मिला था सर ए फर्स्ट बी। एग्जांपल में मन तो हाँ समझ में आ गया कि हाँ ऑन हाँ टू कैसे हुआ, ये पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना, इस ओके। एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा, ओके। ये देखो, तो हमें कोडोमेन में क्या मिला था, कोडोमेन ए बी सी यूटिलाइज करने के लिए मिला था, बट मैंने यूटिलाइज किया ए एंड सी, बी हमारा लेफ्ट आउट रह गया। मीन्स कि जो हमारा रेंज ऑफ कोडोमेन था उसका मैं फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इनटू। और यहाँ पे वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन आई थिंक नहीं है, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैनी वन। अब ये मैनी वन एंड इनटू तो आप समझ लो, इनटू इसलिए है क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड का हमारा कोडोमेन था उसको मैंने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, उसमें एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा भी एलिमेंट लेफ्ट आउट रह गया, इट मीन्स इनटू। और यहाँ जो कोडोमेन था हमारा, 3 कोडोमेन था, और तीनों पे कोई ना कोई एक एरो आया है, इट मीन्स ये हमारा फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ कोडोमेन हुआ है, इट मीन्स दिस इज ऑन टू। एंड वन वन मीन्स कि यहाँ से एक एरो निकला और इसके पास गया, मीन्स ये जो हमारा रिसीवर कोडोमेन है, कोडोमेन के पास हर एक पॉइंट जो कोडोमेन में है उसके पास एक ही एरो रिसीव हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखो ए के पास 2 एरो रिसीव हो रहा है, इट मीन्स 1 से ज़्यादा एरो रिसीव हो रहा है, इट मीन्स दिस इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में एक पे कोई भी एक एलिमेंट पे 1 से ज़्यादा एरो रिसीव हो रहा है, इट मीन्स दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। सो अब हमें, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 1 1 ऑन टू हो गया, 1 1 इनटू का एग्जांपल दे देता हूँ। ये 1 1 ऑन टू हो गया, और ये 1 1 इनटू का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। लेट्स सपोज ये 1 एंड 2 है, एंड इधर ए है, बी है और सी है, ठीक है। 1 हमारा ए पे गया और 2 हमारा सी पे गया, बी हमारा ब्लैंक रह गया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन 1 1 तो है ही, 1 1 इसलिए क्योंकि ये जितने भी सारे रिसीवर्स हैं उसके पास मैक्सिमम 1 ही एरो रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये हमारा इनटू है, इनटू इसलिए है क्योंकि जो हमें कोडोमेन दिया गया था उसमें मैंने पूरा कोडोमेन का यूटिलाइज नहीं कर किया, ठीक है, इसलिए ये इनटू है। एंड मैनी वन एंड ऑन टू, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैनी वन एंड ऑन टू, ठीक है। सो 1 2 3 लेट्स, एंड ए बी सी, ओके। सो एक एरो 1 से आकर हमारा ए पे जा रहा है, और एक एरो 2 से भी आकर सेम ए पे ही जा रहा है, ठीक है। और एक एरो 3 से निकलकर बी पे जा रहा है, लेट्स सपोज ये सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कि 1 से 1 और सारे रिसीवर्स पे एरो आ रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, मतलब हमारा कोडोमेन का फुल्ली यूटिलाइजेशन हुआ, इट मीन्स दिस इज ऑन टू।
एंड मैनी वन इसलिए क्योंकि आप ए पे देखो, ए पे दो रिसीवर है, दो रिसीवर, ए हमारा दो फंक्शन का वैल्यू गिव आउट करता है, ठीक है। वन पे भी ए वैल्यू आ रहा, टू पे भी आ रहा है, इट मीन्स दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ओके, somebody has commented up. Let's see. सर ऑन टू एंड मैनी वन नहीं समझ पा रहा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ऑन टू एंड मैनी वन, सो ऑन टू का मीन्स यहाँ पे देखो, ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा फंक्शन है कि हमारे हमें ये डोमेन दे रखा है, ठीक है, ए बी सी को डोमेन दे रखा है। ओके, इस हेलो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सो लेट्स सी हियर। सो हमें जो रेंज दिया गया था ए एंड बी एंड सी तीनों यूज करने के लिए, बट हमने यूज तीनों कर लिया, ठीक है, तीनों एरो आ रहे हैं इस पे, इट मीन्स दिस वन इज ऑन टू, ठीक है। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कोडोमेन दे रखा है ए बी एंड सी, बट हमने यूज किसका किया, सिर्फ ए एंड सिर्फ ए सी का, बी हमारा लेफ्ट आउट रह गया, इट मीन्स दिस इज इन टू, ठीक है। पूरा मैंने कोडोमेन यूज नहीं किया, दैट्स वाई इट्स इनटू, एंड मैंने पूरा कोडोमेन यूज कर लिया, इट मीन्स ऑन टू, ठीक है। इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। या आर्यन से। हेलो आर्यन, you raised hand, please say. Okay, I think there is an issue with the network, maybe from my side, but I have changed my Wi-Fi, but it still is happening. We'll see. Okay, so अब मैं इसके कुछ नोटेशंस हैं, ठीक है, कुछ नाम से, कुछ पता नहीं इन्होंने क्यों नाम रखा है, क्योंकि सिंपल सिंपल नाम था वन वन, ठीक है। इन्होंने वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहा है, इंजेक्टिव, एंड ऑन टू को इन्होंने कहा है सर्जेक्टिव। दिस इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक है, नाम उन्होंने दे रखा है कि फॉर्मल नाम, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन वन वन है प्लस ऑन टू है, तो इसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ कि एक ग्राफिकल अप्रोच कि ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ग्राफिकल अप्रोच आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा सिंपल ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था क्या, फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और वन वन या फिर मैनी वन, मैनी वन ये चेक करने के लिए आपको यूज करना है हॉरिजेंटल लाइन टेस्टिंग, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ टेस्टिंग। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, कहीं भी बनाओ, पूरे ग्राफ में आप कहीं भी बनाओ, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मीन्स वो मैनी वन है, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्राफ हमारा बना ऐसा, ठीक है, इस पे अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्टिंग अगर अप्लाई करूँ, तो कहीं भी आप एक लाइन हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लो पूरे ग्राफ में, केवल एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स दिस इज अ वन वन, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस मीन अ मैनी वन, ठीक है। दिस इज द सिंपल अप्रोच। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो तो ये आप काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। सो या, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? हेलो,
Hello, guys. Please open your mic and say something. No problem. Okay. सो आप सभी लोग अपना माइक ओपन करें और अगर कुछ पूछना हो कि लाइक इसमें कुछ प्रोसीड कैसे करते हैं सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ यहाँ पे कि अब मैं जनरल टॉक कर